Good morning, students. Today we are going to start chapter number 12. The name of the chapter is Geographical Perspective on Selected Issues and Problems. So, perspective here stands for opinion or view. So, what is the geographical view or opinion on selected issues and problem? And in this chapter, we are going to discuss some of the major problems in India, that is air pollution, water pollution, noise pollution, land pollution. So we are going to discuss in this chapter these pollution problems and what we can do to solve it. And we will also discuss in this chapter problems of slums too. Slums क्या हो जाएंगे, जो कच्ची बस्तियां हैं उनके लिए वर्ड जो यूज हुआ है that is slum. And land degradation, that is degradation here stands for the decrease in the quality of the land surface. So let's start the chapter. What do you understand by environmental pollution? So what do you understand first? What do you understand by pollution? So pollution, when we make something dirty, किसी चीज को हम डर्टी कर देते हैं, किसी चीज को हम इस तरह की कंडीशन में कर देंगे कि वो हमारे लिए क्या हो जाए, डेंजरस हो जाए, दैट इज पॉल्यूशन. And here that pollution is used with the environment, then the proper meaning of this terminology is the action of making environment, and environment include air, water, soil, land, etc. So the action of making environment dirty and dangerous for us, that is environmental pollution. So environmental pollution results from release of substances and energy from waste product of human activities. So human activities, if I am talking about air pollution की बात करते हैं, so traffic or combustion from the vehicles causes air pollution. So that is human activity. Vehicle कौन चला रहा है, human चलाते हैं, किसकी activity है, human activity. So this is the product of human activity. In case of water too, so water pollution in India is mostly from industrial effluents. So industry से जितने भी effluents water में without treatment discharge किए जाते हैं, उनसे water pollution हो रहा है. That too is human activity. So here the sentence is environmental pollution results from the release of substances and energy from waste products of human activities. तो human activities मैंने यहाँ पे discuss किया है vehicles के बारे में. Here I discussed about the industrial pollution or the industrial effluents without treatment discharge in the water. So now the classification on the medium through which pollutants are transported and diffused. Pollution can be classified into air pollution, water pollution, land pollution, and noise pollution. The pollution in air is air pollution. The ऐसे substances, ऐसी gases या ऐसी fumes जो एयर को पोल्यूट कर रही है, उससे डर्टी बना रही है, दैट इज एयर पोल्यूशन. अगर मैं बात करता हूँ कुछ एक गैसेस की, या तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, एल्डिहाइड, एस्बेस्टोस. सो देयर आर सेवरल पोल्यूटेंट्स which causes air pollution, and these are due to the combustion of fuel in vehicles from the industrial processes too, because in our earlier chapters we discussed about the smoke stack industries. We discussed about that. So these smoke stack industries are pollution causing industries. Pollution causing industries ये होती है. Next one, that is water pollution. So water pollution, the contaminated matter in water, that is water pollution. तो ऐसे matter, contaminated, corrupted matters जो water के अंदर क्या हो गए, discharge कर दिए हैं, मिल गए हैं, जिसने उसे क्या बना दिया है, एक प्रकार से डर्टी कर दिया है, उसे अनफिट फॉर ड्रिंकिंग कर दिया है, अनफिट फॉर यूज कर दिया है, दैट इज वाटर पॉल्यूशन. और वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, जैसे एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स आवर लंग्स, our respiratory system, and water pollution affects what? Water pollution somewhat causes serious diseases like diarrhea, intestinal worms, hepatitis. Hepatitis, that is the inflammation in the liver. So serious problems are caused by water pollution. So this is about the introductory part of water pollution. The next one, that is land pollution. And land pollution, that is the degradation in the quality. Degradation, that is decrease in the quality of land, that is land
पॉल्यूशन। तो जो बहुत सारा डर्ट मटेरियल है, वेस्टेज है, वो सारा का सारा लैंड पे कर देना, डिस्पोज कर देना, दैट कॉजिंग लैंड पॉल्यूशन। लैंड को क्या कर रहा है, वो पॉल्यूट कर रहा है, दैट कॉजिंग लैंड पॉल्यूशन। एंड द लास्ट वन दैट इज नॉइस पॉल्यूशन। सो नॉइस पॉल्यूशन का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि नॉइस पॉल्यूशन व्हेन द नॉइज, व्हेन द साउंड इज not at the tolerance level, when the sound is not at the tolerance level, then that sound is causing noise pollution. The state of unbearable, uncomfortable, the sound is uncomfortable to us. If the sound is uncomfortable to us, that causes noise pollution. तो ऐसे sounds कब होता है, जब आप construction sites के आसपास जाते हैं, there you observe such type of sounds which are irritating us, वो हमें irritate करती है वैसी sounds, तो वो sounds आपकी। and also in some functions too, the use of dj play, ये सारी की सारी साउंड्स जो है वो क्या करें, हाँ ठीक है, जो उस फंक्शन में है उनके लिए एंजॉयफुल होगा, लेकिन आसपास के लोगों के लिए that causes noise pollution, that is noise pollution for the nearby persons. So that is uncomfortable, unbearable voice. तो वो unbearable है, uncomfortable है, तो noise pollution को हम decibel कहते हैं। देखिए noise pollution को नहीं बोलेंगे, sound level को always we measure in terms of decibels, that is small d and capital B, that is the unit, that is the unit of the sound. So इसमें जितना एक लेवल, एक सेटेड क्राइटेरिया लेवल से ज्यादा डेसिबल साउंड लेवल है, इन दैट दैट इज नॉइज पॉल्यूशन। तो वो हमारे लिए क्या है, नॉइज पॉल्यूशन है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या है, जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, दैट आर pollutants, that are pollutants, those are causing pollution. So let's talk about the water pollution. Water pollution, the introductory part already discussed. Indiscriminate use of water by increasing population and industrial expansion has led degradation of the quality of water considerably. Indiscriminate means बिना सोचे समझे, एक्सटेंसिव लेवल पे अनप्लान्ड यूज, एक्सटेंसिव यूज ऑफ वाटर रिसोर्स। अब एक्सटेंसिव यूज कब होगी, जब पॉपुलेशन प्रेशर होगा, व्हेन देयर इज अ प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर, देयर देन वाटर क्या यूज होगा, एक्सटेंसिवली यूज होगा, एक्सटेंसिव उसका यूज होगा। एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन टू। So as we all know, this is the time period of industrialization. Industrialization से भी water pollution हो रहा है, because बहुत सारे effluents जो industries हैं वो सीधे without treatment, without any treatment वो discharge कर दिए जाते हैं water से, जो water की quality को degrade कर रहा है, decrease कर रहा है। That is water pollution. So water pollution is due to the population pressure and industrialization. That is due to the industrialization. Now surface water available from river, the water available at surface, that is surface water, and the water that is available in depth, that is groundwater, that is ground, which is available at a level in the ग्राउंड, दैट इज एट द डेप्थ, तो वो आपका ग्राउंड वाटर होता है। तो सरफेस वाटर कहाँ अवेलेबल होता है, रिवर्स में, कैनाल्स में, तो ये प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है। इट कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मींस ब्रेक ऑफ पार्टिकल। मान लीजिए वो रिवर किसी रॉक्स के पास चल रही है, तो रॉक से भी कोई मान लीजिए कुछ मटेरियल ब्रेक होके उसके अंदर बहने लग गया, मिल गया, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो रहता ही है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी रहता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर तो रॉक्स हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर देखिए एक रिवर चल रही है, उसके ऊपर लीव्स भी टूट के, आसपास की जो ग्रीनरी है, वेजिटेशन है, उससे लीव्स टूट के, लीव्स ब्रेक होके कहाँ चल रही है, उसके साथ फ्लो कर रही है, तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को भी क्या कर रही है, कंटेन्ड है, रिवर के अंदर मिला हुआ है। So the water becomes polluted and hence become unfit when concentration of these substances increases. तो रिवर का वाटर हो चाहे कैनाल का वाटर हो, थोड़ा बहुत पॉल्यूशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं, बट जब ये कॉन्सेंट्रेशन जो है इनका इंक्रीज हो जाए, then it is unfit for use, unfit for drinking, unfit for other uses. So the water becomes polluted, the water becomes dirty and hence becomes unfit for
you. In such a situation, the self-purifying capacity of water is unable to purify the water. तो हमने वाटर के अंदर इतने ज्यादा अलग पार्टिकल्स हमारी वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, तो उसने उस वाटर को क्या कर दिया, तो वाटर की सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी, जैसे देखिए वाटर, हमेशा ध्यान रखना कि वाटर के अंदर आप मान लीजिए कोई भी मटेरियल अगर मान लीजिए गिरता है तो वो नीचे जाके बॉटम में क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो वाटर के अंदर खुद की एक सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी होती है, लेकिन जब सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा हो गए, उसमें केमिकल्स भी मिल गए हैं, इंडस्ट्रीज से निकले हुए केमिकल्स मिल गए हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज मान लीजिए जो जैसे कुछ एक रिवर्स के तो आसपास जो है बैंक्स ऑफ द रिवर पे लोग कपड़े धो रहे हैं, डिटर्जेंट का पाउडर, डिटर्जेंट का वाटर जा रहा है उसके अंदर, दैट कॉजेज बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज और बहुत ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और इस प्रकार के जो एलियनेटेड सब्सटेंसेस है वाटर के लिए, उनके मिक्सअप होने से उसकी सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी पूरी तरह से क्या हो गई है, ब्रेक, एंड दैट वाटर इज अनेबल to purify that capacity now is unable to purify that water and water polluted. So this is about the water pollution. You can see the figure 12.1, that is the cutting through affluents. Here the Yamuna river, you can see the pollution of Yamuna river, you can see, and rowing through a pervasive layer. Pervasive layer means that is extensive, that is inescapable, escapable. तो इस तरह के जो परवेसिव लेयर्स है, यू कैन सी लेयर ऑफ द फॉर्म, तो ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, जो स्नोफॉल लग रहा है, ये आपको स्नोफॉल या फिर स्नो नहीं है, ये जो फॉर्म बना हुआ है, दैट इज ड्यू टू द पॉल्यूशन. दिस इज द पिक्चर ऑफ यमुना रिवर, पॉल्यूटेड यमुना रिवर ऑन द आउटस्किर्ट्स ऑफ न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली से जो पॉल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज से जो पॉल्यूशन हो रहा है, दैट इज समव्हाट causing that. Though water pollutants are also created from natural sources. तो water pollutants देखिए हमने अभी पढ़ा था कि suspended particles are all suspended particles तो already क्या है, water pollution के अंदर already है suspended particle. तो water pollutants are also created from natural sources, erosion, landslide. तो erosion से क्या होता है, erosion से rocks है, सॉइल है, तो उसमें से क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स ब्रेक होके किसके अंदर चला गया, वाटर के अंदर मिक्सअप हो गया, दैट इज आल्सो कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन. लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड के अंदर क्या होगा, रॉक्स जो है वो ब्रेक हो जाती है, डीके, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, दिस ऑल आर natural sources of water pollution, and pollutants from human activity are real cause of concern. क्योंकि देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि water having self purifying capacity, तो ये जो natural sources से जो water pollution हो रहा है, that is balanced by the self purifying capacity of water. जो human activities से हो रहा है, that is the major concern, that is a major concern, ये सबसे ज्यादा problematic है. So human beings pollute the water though through industrial, agricultural and cultural activity. तो ये तीनों अभी डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन बीइंग पॉल्यूट करता है वाटर को. इंडस्ट्रियल के अंदर वी ऑलरेडी डिस्कस दैट एफ्लुएंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, without proper management, discharge into the water, discharge into the river, discharge into the canal. So that is causing water pollution. Next one, that is agricultural activity. We are, as we all are familiar about the chemicals, fertilizers which are using in the agricultural farms. So agricultural farms में इनका यूज होता है. जब agricultural farms में रन ऑफ होगा, रन ऑफ मीन्स क्यों होगा, जब एक्सेसिव वाटर, जैसे मान लीजिए रेन हो रही है, प्रेसिपिटेशन हुआ है, तो रेन वाटर जो है एग्रीकल्चर फार्म के अंदर मान लीजिए वो जितना परकुलेट होना था हो गया, अब उससे एग्रीकल्चर फार्म से थोड़ा बहते हुए बाहर निकल के, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो पानी है वो रिवर में मिलता है, जो भी रिवर का एरिया है, कैचमेंट एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, तो वहां से जो वो पानी उस लैंड सरफेस पे बहता हुआ जब रिवर में मिलेगा, तो पहले ही जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हुए हैं वो उस वाटर के अंदर क्या हो गए, सॉल्युबल हो गए. सॉल्युबल होने के बाद वो जब वाटर रिवर से मिला, कैनल से मिला, जहां भी मिला, तो दैट कॉज पॉल्यूशन. ऑल्सो सुन लो कि इसके अंदर जब वो पानी केमिकल फर्टिलाइजर से सॉल्युबल होकर जब परकोलेट करके डेप्थ में जाता है, ग्राउंड वाटर में जाता है, तो ग्राउंड वाटर को भी क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है.
Next one, that is cultural activities. And cultural activities, we all are familiar about some of the cultural event, religious events of the in India. We all are familiar about the Visarjan of Ganpati. We all are familiar about the Chhat Puja. We all are familiar about Deep Mahotsav. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो कल्चरल एक्टिविटीज है, अननेसेसरी बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं, जो हमने इसके अंदर क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है वाटर के, यस, उसके अंदर मिक्स कर दिया, तो ये सारे के सारे आपके, ये सारे के सारे जो है आपके इसके अंदर वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। यस मिस्टर, यस, 1 मिनट। कल्चरल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग हमने बात की कि कल्चरल एक्टिविटीज, वी ऑल आर फेमिलियर अबाउट वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज इन वेरियस रिलीजन्स। बहुत सारे रिलीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द रिवर वाटर। आल्सो रिवर वाटर के अंदर एसोसिएटेड कुंभ मेला, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। कुंभ मेला के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग जो फ्लावर्स हैं, जो अदर एसेसरीज हैं, जो अपनी वर्शिप एसेसरीज है, उनको क्या कर देते हैं, रिवर वाटर के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। So this cause water pollution. So among these activity, industry is the most significant contributor. तो industries जो हैं उनका रोल water pollution में सबसे ज्यादा है। They are polluting water at highest level. वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, pollute करते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टेबल 12.1, that is types and sources of pollution. So we already discussed about the pollution types, major pollution types in India, that is air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Now how air pollution is caused? So air pollution are caused due to the increase in the concentration of air pollutants, that is oxides of sulfur, SO2, SO3, oxides of nitrogen, carbon monoxide. It is a poisonous gas. Carbon monoxide is a poisonous gas. ये बिल्कुल पॉइजनस है। हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, लीड, एल्डिहाइड्स, एस्बेस्टोस एंड बेरिलियम, these all are pollutants and these are causing air pollution. And what are the sources of these pollutants? And the first sources of pollutants are combustion of coal. Combustion of coal, where it is कहाँ होता है, तो हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स where electricity is generated through heat and combustion of coal, that causes this type of air pollution. Petrol, diesel, which is used in vehicle, that also cause air pollution. Solid waste disposal and sewage disposal is also causing pollution. Next one, that is water pollution. And water pollution involve odor. हम देखिए पानी को, कई बार हम पानी की स्मेल लेके बोल देते हैं अरे ये पानी तो यार खराब है। कैसे बोल देते हैं, क्योंकि हमने उसका क्या लिया, ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो भी डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट, डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड। सस्पेंडेड वी ऑलरेडी डिस्कस दैट, ब्रेक ऑफ पार्टिकल्स। ब्रेक ऑफ पार्टिकल किसी से भी हो सकते हैं, ट्रीज से ब्रेक ऑफ पार्टिकल हो जाते हैं, रॉक से हो जाता है, दैट सॉलिड्स। ammonia, urea, these are used, nitrate and nitrate, these are used in agricultural fields, especially as a chemical fertilizer, that too causes water pollution. Chloride, fluoride, carbonates, oil and grease, insecticide, pesticide, residue, tannin, coliform, MPN, bacterial count, sulfates and sulfides, heavy metals, example are lead, arsenic, mercury, manganese, etc., radioactive substances. So these are causing water pollution. They are water pollutants. And the sources of these pollutants are sewage disposal. Sewage disposal, that is the wastage of humans, that is wastage of human. Urban runoff. Urban runoff का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे जो अर्बन एरियाज में जो रेनफॉल आता है, स्पेशली रेनफॉल की बात करता हूँ, बाकी तो देखिए रन ऑफ के अंदर ये है कि कुछ घरों से तो क्या है, पानी नालियां जो है, ड्रेनेज इस तरह का है कि वो ड्रेनेज आखिर में जाके किसमें मिल जाता है, रिवर या कैनाल के अंदर मर्ज हो जाता है। टॉक्सिक एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज। टॉक्सिक एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज में देखिए केमिकल्स आ जाते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में केमिकल्स है, वो कुछ केमिकल्स टॉक्सिक है, इंजीरियस है, डेंजरस है, तो उनका
मिक्सअप हो जाना वाटर के अंदर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, दैट इज टॉक्सिक एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्री. नेक्स्ट वन दैट इज रन ऑफ ओवर कल्टीवेटेड लैंड्स. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स. ये सारे के सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स कल्टीवेटेड लैंड एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर यूज होते हैं. तो वहां से जो पानी बह के या फिर अंडरग्राउंड वाटर के अंदर भी परकोलेट होके चला जाए तो वो अपने साथ में सॉल्युबल केमिकल को मिक्सअप किया हुआ होता है और वो उस वाटर को क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा. और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास में भी वाटर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होते हैं दैट पॉल्यूट द वाटर. द नेक्स्ट वन दैट इज लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन कैसे, तो देखिए थ्रोइंग ऑफ गार्बेज. हम भी अगर मान लीजिए चिप्स का पैकेट खाने के बाद चिप्स के पैकेट को, खाली पैकेट को हमने लैंड पे फेंक दिया, हमने ग्राउंड पे फेंक दिया, तो वो कैसे पूरी तरह से डैमेज नहीं होगा, वो डिग्रेडेबल नहीं होता है इतना जल्दी. पॉलीथीन तो स्पेशली नहीं होती है डिग्रेडेबल. दैट कॉज लैंड पॉल्यूशन. सो ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीट वायरसेस and bacteria, garbage and vectors therein. Pesticides and fertilizer residue, alkalinity. तो ये बहुत सारे जो हैं आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ह्यूमंस के जो है क्या करते हैं, लैंड पॉल्यूशन आपके करते हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लैंड पॉल्यूशन. और कैसे हो रहा है सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन? सोर्सेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन आर इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज. द फर्स्ट थिंग दैट इज इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटी, डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, use of pesticides that is in agricultural fields, and fertilizers that is also used in agricultural field. The only motive is to increase the production. They are not considering the eco friendly fertilizers, that is organic fertilizer. वो उसको कंसीडर नहीं करके उनका सीधा सीधा मोटिव होता है जो होता है प्रोडक्शन को क्या करना, इंक्रीज करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना. तो ये आपका लैंड पॉल्यूशन करते हैं. नेक्स्ट वन दैट इज नॉइज पॉल्यूशन. दैट इज हाई लेवल ऑफ नॉइज अबाउट टॉलरेंस लेवल. जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं उससे ज्यादा जो नॉइज है दैट इज नॉइज पॉल्यूशन. दैट इज नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन. तो मैंने ऑलरेडी आई डिस्कस्ड अबाउट दैट वी आर मेजरिंग साउंड लेवल इन डेसिबल्स. डेसिबल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड लेवल. सो हाई लेवल ऑफ नॉइज अबाउट टॉलरेंस लेवल, दैट इज नॉइज पॉल्यूशन. तो किस किस से होता है, देखिए एडवर्टाइजिंग मीडिया. कई बार हमारे घर के आगे से जो है कोई, अगर मान लीजिए कोई फेयर लगा है, कोई कार्निवल लगा है, उसके रिगार्डिंग जो एडवर्टाइजिंग मीडिया की गाड़ियां निकलती है, दैट इज कॉजिंग नॉइज पॉल्यूशन. एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर है, प्लेन्स हैं, ये जब निकलते हैं तो आप देखते हैं साउंड आता है. ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों की भी आवाज है. ट्रक्स निकलते हैं, बसेस निकलती है नाइट के अंदर, जिनके घर हाईवेज के पास में है, दे कैन इजिली फील दैट, ऑब्जर्व दैट, उनको बिल्कुल सुनाई देती है, क्योंकि रात के अंदर बाकी जो साउंड्स कम हो जाते हैं तो वो साउंड्स जो है आते हैं. ट्रेन की आवाज डेफिनेटली नॉइस पॉल्यूशन है. इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, आप इंडस्ट्रीज एरिया से जब निकलते हैं तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज की मशीन्स की आवाज आती रहती है. तो ये सारे के सारे दीज ऑल आर क्रिएटिंग नॉइस pollution. So this is all about the types and sources of pollution, students.